जर्म हूँ आका मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले के रास्ते में है जा बजा थाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले hand over the mic to Mishkat Fatma. If she is here, kindly start. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है? मेरी स्क्रीन आ रही है? First of all, Assalamu alaikum to you all. I welcome you all here in Pakistan's Health Metrics. That is an initiative taken by the Research Department of KHRWS, Khadim Hussain Rizvi Educational and Welfare Service. So I welcome you. So this is our agenda. We are done with Tilawat and Naat Sharif. And in it, Suhaib Shah from second year was performing. Now I'll be doing the opening. So I'm a final year MBBS student at Hamdard College of Medicine and Dentistry. I have been topper in my first, second, and third year of MBBS, and now I'm in final year. So we all are gathered here for just a 45-minute session. You can see the schedule of it. So first of all, I'll be doing the opening and telling you a little stuff about it, and then research proposal will be presented to you by Parvez Ali. He's BS Biotechnology from the Gumal University and president of research department of KHRWS. Then Asma from fourth year Quaid-e-Azam Medical University will be giving you a basic overview of our biodata form. And then Hamna Arshad from final year DG Khan Medical College. And she will be telling you systemic data collection, and then there will be a 5 minutes question answer session. So now we are done with the Tilawat. So first of all, introduction. We are here for telling you about our procedure, our stuff, and our initiative. So first of all, scope of research in Pakistan. I have been seeing a lot of research papers for this. So I found out that Pakistan, through a Semago research journal, it was said Pakistan ranks 45 among developing countries. But it is, whereas India ranks on 7, because we have been struggling for a lot of things, but we have less counseling, we have less resources, we have lack of knowledge. Our students only do researches for just degree purpose. They have zero knowledge about things. So we are here to involve you from, like, you can be a BS student from any medical field or from MBBS. You can come to us. You can connect to us from, even if you are from first year, second year, third year, fourth year, fifth year, whatsoever your year is.
you can connect to us and we will teach you things. And not just these things will help you in research purpose, but these things will develop your clinical skills as well. So how is it going to happen? I'm telling you this. Okay, this is our actually grand initiative for students. We have been already taking a lot of initiatives for students, and these are, we do things for free. Okay, so because free is so rare these days, so I'm starting our initiative for students. Engage, first of all, my point is engage in real world research projects. We have students that are least interested in researches because of mentors that are not telling things properly, not delivering things properly, not involving new people. So we took this initiative क्योंकि हमारा जो project है, it will be a series of researches, not just one. So if you are getting connected to us, you will be able to getting indulged in researches. Okay, now second point is enhancing knowledge regarding common disease in Pakistan. Like, I'm a final year student and I can tell you, even at the level of my final year, we have a lot of students that are very bad at taking even histories because they have least knowledge of diseases. So my fellow like Asma and like Hamna would be telling you how you are going to get information in regarding common disease in Pakistan. For example, we will give you a questionnaire. You'll see it like after a few minutes. We'll give you a questionnaire, and through this, we will give you provide you recorded lectures on it, and you will literally have an expertise that are specialized doctors. Okay, next thing is clinical skills from scratch. So this is because students take very history, they get insulted in every part because they are putting less and less efforts. So we will, even if you are from any of the year, we will teach you a proper way of taking things, because for this our first research that the proposal of Parvez Bhai will share the proposal, will tell you the proposal of it. So, and then in the questionnaire you will see things that you are not educated about. You will have मतलब after आप उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास एक opportunity होगी कि you will understand your studies even better because you would have some knowledge about what is this thing. Okay, next thing is career advancements through building research portfolio. Of course, you will be participating in your researches and you will get your names in that. After this, आप लोग इसमें नाम होंगे. What you will be providing, we will be providing you a task, और आपको वो और उसके बाद जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे. आप लोगों के नाम जो है उसमें फिर आगे से आएंगे, राइट, जो हम पब्लिश करवाएंगे उसमें भी. So you will be participating in multiple researches through this. Next thing is networking opportunities. We have students from all over the Pakistan, and we will be doing Pakistan-wide researches. So you will have an opportunity to be in network with all students from all over the Pakistan. Next thing is update knowledge as a future healthcare professional. Of course, after जब आप लोग देख लेंगे कि after our research proposal is being presented to you, आप लोग देख लेंगे कि how modified things we are going to go for. और फिर as a student जब आप student के बाद आप HOship में आते हैं, आप आगे जाते हैं, so you will have latest knowledge about Pakistan's health metrics. Okay, next thing is publish in reputable journals. We have sources, and through this we will publish researches in Pakistani reputable journals and invest as well. So if I summarize, you will have opportunity to get so much of the knowledge, for not just for your education purpose, not for just your research purpose. It will help you build your clinical skills, even if you are from the first or any of the years. So next thing is authenticity. If I talk a little about authenticity, then here at WS we have a portal, our personal portal, and we will give you its link when we are starting data collection. So it is probably getting started from tomorrow, 11th of July.
So K3WS portal will ensure authenticity and integrity. We will not use Google form or anything. So this is what going to make us make our data collection an authentic one. Okay, then research duration, if I talk about a little in it, we will go for research data collection for a month and then data analysis, and then almost 15 days or a few more for the published purpose. So I thank you from my side, and now I would be next calling Parvez Bhai. He is the K3WS Research Department President. So Parvez Bhai, please start. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all will be fine. तो आज जिस मकसद के लिए हमने आप लोगों को इकट्ठा किया वो सबसे पहले तो ये था कि आप लोगों का एक रिसर्च माइंड बनाना, और दूसरा जो हमने एक बिग इनिशिएटिव लिया है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम इसमें चलते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हमें क्या हासिल होगा और इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। Not now. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes. Start. जी, तो सबसे पहले ये जो हमने पाकिस्तान हेल्थ मैट्रिक्स का एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि खादिम हुसैन एजुकेशन एंड वेलफेयर सर्विस की जानिब से शुरू किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप देखें कि रिसर्च का मकसद क्या होता है। रिसर्च का मकसद यही होता है कि जहाँ पे शॉर्ट फॉल आ रहा है उसको एड्रेस करना और फिर उसको एड्रेस करके उसको सॉल्व करना। पाकिस्तान का जो है और हम रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे हैं और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है अभी तक उस लेवल पे नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था, और लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ इतनी एक्सेस भी नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है कि वो इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करके फिर जो चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करे और पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब हम ये जो बिग गोल है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने का, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स लेके चलें। सबसे पहले तो हमने डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान में जो प्रिवेल करने वाली कॉमन डिजीजेज हैं वो कौन सी हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है एंड मैनी मोर। इनको पहले हमने डिटरमिन करना है और फिर हमने इनका रेट डिटरमिन करना है कि इनका रेट क्या है। फिर डिफरेंट पैटर्न और ट्रेंड्स हमने मालूम करने हैं कि वो रीजनल बेसिस पे भी होंगे, वो डेमोग्राफिक बेसिस पे भी होंगे। रीजनल बेसिस के मीन रूरल एरियाज में इनका जो प्रिवेलेंस रेट है वो कितना है, अर्बन एरियाज में कितना है, प्रोविंसेस में कितना है, और फिर डेमोग्राफिक पे देखें कि जेंडर को आप देख लें कि वुमेन में इनका प्रिवेलेंस रेट कितना है। मैं फर्क ये कहता हूँ कि जो हार्ट डिजीज है वो मेल में ज्यादा है, वुमेन में कम है। तो फिर हम उसको देखेंगे कि एज पे इसका क्या इफेक्ट है, क्या ज्यादा जो बूढ़े लोग हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, यंग पीपल इससे इफेक्ट हो रहे हैं, चाइल्ड इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें मालूम होगी। और रीजनल का इस तरह होगा कि हम ये मालूम करेंगे कि एक चीज है उसका प्रिवेलेंस रेट फर्ज किया लाहौर में ज्यादा है, कराची में कम है, और लाहौर में क्यों ज्यादा है। फिर हम इसके रिस्क फैक्टर मालूम करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इनकी प्रिवेलेंस की वजह कर रहे हैं। वो आया एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो आपकी डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम्स में मौजूद जो चैलेंजेस हैं वो हैं, या कोई और इसमें हमारा इशू आ रहा है। तो ये जो मेजर इशू है इनको एडेप्ट करके फिर हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह इंप्रूव किया जाए। ये कुछ शॉर्ट से ऑब्जेक्टिव्स हैं
जो हम ये अपना बिग गोल अचीव करने के लिए इनको पहले हम अचीव करेंगे। तो आगे ये सारा कुछ हम किस तरह करेंगे, उसमें हमने एक मेथोडोलॉजी डिजाइन की। सबसे पहले स्टडी डिजाइन है कि हमने चैलेंजेस को समझा, कुछ स्टडी की, फिर एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें आपके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जिसमें क्वेश्चनर है, ये प्रपोजल भी इसी का हिस्सा है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हमारे पास डेटा आ जाएगा, हम उस डेटा को इकट्ठा करेंगे, उसकी फाइल होंगी, फिर हम उसका थीसिस लिखेंगे। ये सारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसका एक थीसिस लिखा है जिसकी में उसकी आल स्टोरी लिखी जाती है कि हमने क्या क्या किया और किस तरह किया और हमें उसमें क्या हासिल हुआ। उसके बाद हमारे पास डेटा कलेक्शन हमने करनी है, वो सर्वेस के थ्रू होगी, और एक क्वेश्चनर जो अभी जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं वो आपको बताएंगी क्वेश्चनर का कि आपने उसको फिल करना है, वो आपको सारा समझाएंगे। इसमें हम फेस करेंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, मुख्तलिफ सिटीज का, इस तरह डेटा कलेक्ट करेंगे। और हम जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, हम उनसे पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करेंगे। वो उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, उनकी एज कितनी है, उनका नाम भी पता चल जाएगा, और फिर उनका ट्रीटमेंट किस तरह जा रहा है। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें इससे पता चल जाएंगी। और फिर हम कुछ लेबॉरेटरी डेटा भी लेंगे, कुछ जो हमारे पास स्पेशल केस होंगे, हम उनके ब्लड प्रेशर भी चेक कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक कराएंगे, और बाकी टेस्ट भी हम पीसीआर वगैरह है वो भी स्पेशल केसेस होगा। और उसके बाद जो डेटा कलेक्शन जब हमारे पास हो जाएगी तो अगला स्टेप होगा कि डेटा को एनालाइज किस तरह करना है। डेटा एनालिसिस इस तरह होगा कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस मालूम करेंगे। कि मैं आपको मिसाल दूं कि मैं कहूँगा कि हार्ट डिजीज जो है वो कराची में इतने परसेंट है, लाहौर में इतने परसेंट है, इस्लामाबाद में इतने परसेंट है, या किसी और इलाके में चले जाएं इतने परसेंट है। और फिर ये कहेंगे कि वो मेल में इतनी है, फीमेल में इतनी। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम इनके जो वेरिएबल हैं इसका रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके फिर हमें फैक्टर मालूम हो जाएंगे कि डिजीज प्रिवेलेंस के फैक्टर कौन से हैं। वो है एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वो लोगों की डाइट है, वो उनका लाइफस्टाइल है, वो व्हाटएवर जो भी है वो इंशाल्लाह हमें इससे पता चल जाएगा। और हमें इश्यूज भी पता चल जाएंगे कौन से इश्यूज हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमने क्या रिसोर्सेज इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे। इससे पहले तो हमारी एक रिसर्च टीम है जिसको मैं आगे जाकर इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो फिर उसके बाद डेटा कलेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग भी शामिल हैं जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा एनालिस्ट, उसमें भी इंशाल्लाह हमारे पास लोग मौजूद हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हम इसको डाटा को एनालाइज करेंगे। हमारे पास आ रही है उसका जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक हम देंगे, उसमें सारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी यूज होंगे, लाइक एस जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं और स्टैटिस्टिक में भाई सबके माइक बंद है। नेक्स्ट हम सारा प्रोसीजर कर लेंगे, डेटा को कलेक्ट भी कर लेंगे, उसको टाइप भी कर लेंगे, तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिलेंगे। उसमें हमें जितनी भी कॉमन डिजीज है पाकिस्तान में उनका रेट मालूम हो जाएगा कि कौन से रीजन रेट है उसको पता चल जाएगी। दूसरे नंबर पे हमें पैटर्न और ट्रेंड्स मुख्तलिफ रीजन्स के पता चल जाएंगे, और हमें वो एरिया पता चल जाएंगे जहाँ पे डिजीज का हाई बर्डन है। और फिर फैक्टर भी मालूम होंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो इन एरियाज में डिजीज को प्रिवेल करने की वजह बन रहे हैं। और फिर जब ये चीजें हमें मालूम हो जाएंगी तो एंड पे जो तीसरा हमारा मेन हमें इंशाल्लाह हासिल होगा वो है कि हमारे पास एक रिकमेंडेशन होगी और हमारे पास पॉलिसीज होंगी, प्लान होगा कि हम अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको काउंटर करके किस तरह हेल्थ केयर पॉलिसीज बना सकते हैं।
तो इसमें ये जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें कॉमन डिजीज़ के मुतालिक और जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ उनके मुतालिक यूज़फुल डाटा मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएँगे। और आई होप कि ये जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन इस बड़े गोल को हासिल करने के लिए करेंगे। और इसमें जो मेन चीज़ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा, तो मैं वो आपको सिंपली बता दूँ कि सबसे पहली बात, ये जो आप रिसर्च करने जाएँगे ना, तो आपको इतना नॉलेज और स्किल मिलेंगी। अभी हम सिर्फ 2 दिन गए हैं और इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि पहले भी हम रिसर्च करते रहे इस तरह की डेटा कलेक्शन जिसमें सर्वेस थे। तो आपको एक तो जितने एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब वो जाएँगे हॉस्पिटल में, मुख्तलिफ पेशेंट से मिलेंगे, एक तो उनका एक्सपोज़र होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बाकी उनको पता चल जाएगा डिज़ीज़ के रिलेशन का। अब मैं कहता हूँ एक बंदे को डायबिटीज़ है ना, और फिर उसको उसी डायबिटीज़ की वजह से किडनी प्रॉब्लम हो गया, फिर उसी डायबिटीज़ की वजह से उसको आई का प्रॉब्लम हो गया, उसी वजह से उसको न्यूरोपैथी हो गई। तो आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे रिसर्च की, और मुझे जितना पता है कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है उनको स्पेशलाइजेशन में भी रिसर्च की ज़रूरत होती है, उनको रिसर्च करनी पड़ती है। और जो बीएस के स्टूडेंट है अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बीएस के बाद जो एमफिल और पीएचडी होती है वो तो सारी होती है रिसर्च है। तो इसके बाद हमने ये एक प्लान किया है कि हम जिस तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारा डाटा होगा, जिसमें मुख्तलिफ सिटीज़ का होगा, मुख्तलिफ प्रिवेंस का और मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ का। हम फिर इसको इकट्ठा करेंगे तो हम एक सिटीज़ का फ़र्ज़ किया, मैं हार्ट का ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस सिटी में हार्ट के इतने पेशेंट हैं, उसमें इतने जो हैं वो इतनी उम्र के हैं, बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, इतनी मर्द हैं, इतनी औरतें हैं। तो फिर इसको हमें एनालाइज़ करके मुख्तलिफ एरियाज़ के हमें जो हम एक पेपर्स फिर बनते हैं, आपका हम नेम ऐड करेंगे जो आपकी सीवी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको बेनिफिट देगा। तो इसमें हमारी जो सारे प्रोजेक्ट में टीम है जो मेन इस प्रोजेक्ट को कवर कर रही है, उसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है अपना। उसके बाद डॉक्टर मिशकात फातिमा है जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं हमदा मेडिकल कॉलेज कराची से। उसके बाद डॉक्टर हमना अर्शद हैं जो कि आप आगे आपको हिस्ट्री टेकिंग का भी बताएंगी, वो भी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं डीजी के मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर आपको सिद्दीक हैं कि 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है एट कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भागलपुर, और उसमें ज़हीब शाह साहब हैं जो 2nd ईयर एमबीबीएस हैं सिम्स कॉलेज लाहौर में। तो उसके बाद मैं एक शख्सियत का यहाँ पे जिक्र करूँगा जिन्होंने सारी चीज़ों में हमें हेल्प किया और मैं सुपरवाइज किया। अगर वो ना हो तो शायद हम इतना बड़ा इनिशिएटिव ना ले सकते। और रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर बाब रिजवी साहब, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? Yes. यस, ओके ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने रिसर्च की फील्ड में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। और अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको पहले 2 स्पीकर्स ने बता दी। अब नेक्स्ट मैंने ये बताना है कि आपको जो डेटा कलेक्शन है वो किस तरह से करनी है और फॉर्म किस तरह से फिल करना है। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आप मुझे बता दें कि शेयर हो रही है। शेयर हो रही है। नीचे है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताना है कि आपने अपना फॉर्म किस तरह से फिल करना है। फॉर्म का जो लिंक है वो वेबसाइट का लिंक आप दोबारा
इसे अनप्रेजेंट करके दोबारा प्रेजेंट कर दें, शायद कोई एरर आ रहा है। अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। और इस दोबारा शेयर करूं? यस, स्क्रीन आ रही है? एक दफा अनप्रेजेंट करके प्रेजेंट कर दो दोबारा। ओके ठीक है। कितने मेंबर? 81। शादी थोड़े वो वीडियोस वगैरह जिस तरह उस दिन कॉन्फ्रेंस दी पड़ेगी वो करें। सब ठीक है? यस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना पर्सनल डेटा एंटर करना है, अपना नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और अपना फ़ोन नंबर। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डेटा जो है वो कौन से बच्चे ने सबमिट करवाया है और उस किस बच्चे की डेटा कलेक्शन स्किल्स, किसकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स कैसी हैं, और अगर कोई उनमें फॉल्ट होगा तो वो हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे और आपको बता देंगे। और देन इसके बाद आता है पेशेंट का बायोडाटा। तो पेशेंट के बायोडाटा में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने पेशेंट से परमिशन लेनी है कि हमने जो आपका डेटा यूज़ करना है उसको अपने रिस्क पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। आप इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं या नहीं? तो ये आपने सबसे पूछना है और इसके बाद स्टार्ट करना है। तो पेशेंट का नेम पूछना है, उनका एड्रेस, उनके सिटी, सारी चीज़ें। इसके बाद उनकी एज आ जाएगी और मैरिटल स्टेटस पूछना है। फ़ोन नंबर आपने उनसे कहना है कि चूँकि हमने रिसर्च के लिए चाहिए तो आपका फ़ोन नंबर हमें ज़रूरी है। अब अगर कोई फ़ीमेल है और वो अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहती तो आपने उनके किसी मेल का फ़ोन नंबर ले लेना है। इसके बाद प्रोफ़ेशन पूछना है। देन इसके बाद आता है उसका पर्सनल लाइफ़स्टाइल। अब लाइफ़स्टाइल में आपने उनसे पूछना है कि क्या स्मोकिंग करते हैं? वो किसी भी किस्म का कोई भी नशा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग भी हो सकती है, वो हुक्का भी हो सकता है, पान हो सकती है, कुछ भी है, वो सारी आपने पूछ लेनी है। अगर तो वो कह देते हैं कि नहीं तो ओके हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं, तो आपने पूछना है कि स्मोकिंग वो कब से कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं और फिर वो कितने सिगरेट पीते हैं। ये सारी डिटेल्स भी आपने पूछनी है। इसके बाद एक्सरसाइज का पूछना है कि एक्सरसाइज वो रेगुलरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद स्लीपिंग काफ़ी ज़रूरी है। स्लीप का पूछना है कि उनको नींद सही से आती है और कितने घंटे वो नॉर्मली सोते हैं। इसके बाद डाइट का पूछ लेना है। डाइट में ज़्यादा चीज़ें कौन सी यूज़ हुई हैं, वो वेजिटेरियन है या फिर गोश्त ज़्यादा खाते हैं, फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपने पूछनी है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो जो भी पेशेंट है आपका, वो अगर घर में रहने हैं या फिर ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो उस जगह पे कोई पोल्यूशन तो नहीं है। तो ये अपने के पास जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ घर है उसके पास कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका डेली का एक्सपोजर हो और वो चीज़ उनको अफेक्ट कर रही हो। इसके बाद सेकेंड हैंड स्मोक ये है कि उनके घर में वो खुद तो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन उनके घर में कोई दूसरा बंदा या जिस कंपनी में वो रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, वहाँ पे कोई और बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसके स्मोक में उनका एक्सपोजर है, वो सेकेंड हैंड स्मोक है। तो ये कोई इस तरह से कर लेना है कि आपके कंपनी में कोई फैमिली में कोई दूसरा बंदा सिगरेट पीता है या नहीं। उसके बाद आपने उनका वाटर सोर्स पूछना है कि वो कितना जो वाटर यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, वो फिल्टर्ड है या नहीं है, या जहाँ से भी आता है उससे उनकी हाइजीनिक कंडीशंस का अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फैमिली हिस्ट्री आती है। तो फैमिली में आपने पूछना है कि कोई ऐसी डिजीज़ हो जो उनकी फैमिली में रन कर रही हो, लाइक डायबिटीज़ होती है तो वो फैमिली में होती है, समटाइम्स ओबेसिटी की हिस्ट्री होती है फैमिली में, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है, तो ये डिजीज़ आपने पूछ लेनी है। इसके बाद पूछना है कि कोई ऐसी डिजीज़ जो स्पेसिफिकली उनके पेरेंट्स को या उनके सिबलिंग्स को हो। और इसके बाद आपने उनके मैरिज का पूछ लेना है कि वो फैमिली में हो रही है या फिर आउटसाइड हो रही है, क्योंकि अच्छा। तो इसके बाद ये बेसिक जो हिस्ट्री थी ये मैंने आपको बता दी है और आई होप कि ये आपके क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट स्पीकर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू अस्मा। नाउ हमना अर्शद विल कंटिन्यू द सिस्टमिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी हमना क्या आ रही है? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes. ओके। अच्छा, तो अभी तक आपको अस्मा ने बता दिया है कि आपने पेशेंट का जनरल बायोडाटा और जनरल हिस्ट्री किस तरह आपने देनी है, वो सारा डाटा किस तरह कलेक्ट करना है। अब आपने ये देखना है कि अगर तो पेशेंट ने आपको खुद बता दिया है कि उसको किडनी का इशू है, उसको हार्ट का इशू है या उसको लंग्स का इशू है, पेशेंट ने आपको खुद बता दिया है कि उसको शुगर का मसला है, तो आपने उस स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ आ जाना है, या उसके कंप्लेंट्स उनके ऊपर जनरल हिस्ट्री में आपको आइडिया हो गया ये किस सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपने बाकी सारा स्किप करके उस स्पेसिफिक सिस्टम जो है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ आ जाना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ट का पेशेंट है, यानी वो पेशेंट आपको बता रहा है कि उसको चेस्ट पेन का इशू है, दिल में दर्द का मसला है, तो आपने उसके लिए जो उससे क्वेश्चंस पूछने हैं ना, ये हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे ना बाद में लिंक के डाटा कलेक्शन का जो आपको देंगे क्वेश्चन, ये इसमें ये होगा कि आपके हार्ट डिजीज से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे पेशेंट से कि हाउ ऑफन डू यू एक्सपीरियंस चेस्ट पेन और एंजाइना एंड हाउ सीवियर इट इज। अब आपने उससे पेशेंट से इस तरह पूछना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे स्पेशली जिनको अभी हिस्ट्री से रिलेटेड इतना नहीं पता, आपने पेशेंट से इस तरह पूछना है कि आपको दिल की तकलीफ तो नहीं है, दिल में दर्द तो नहीं होता, अगर होता है तो उसकी शिद्दत कितनी है। अब अगर पेशेंट आपको बताता है कि उसको चेस्ट पेन का इशू है, तो ऊपर आपको जो डिजीज के लिए दिया गया है ना, डिजीज डिस्क्रिप्शन दी गई है ऊपर, हर सिस्टम से रिलेटेड दी गई है। तो चेस्ट पेन में आपके पास ऑप्शंस हैं, एंजाइना हो सकता है स्टेबल या अनस्टेबल, एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकती है उसको, या मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। तो अब ये आपने सिविरिटी के बेस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि उसको इसमें से कौन सा इशू है। अगर मैं आपको बताऊं कि एंजाइना का अगर चेस्ट पेन आप देखें तो वो किस तरह का होता है, पेशेंट आपको बताएगा कि मेरी चेस्ट पे मुझे वजन सा फील होता है, भार महसूस होता है मुझे, या पेशेंट आपको बताएगा कि जिस तरह बदहजमी की वजह से सीने के बिल्कुल दरमियान में दर्द होता है। फिर आप मुझसे ये पूछना है कि ये दर्द जो है ये गर्दन की तरफ फैलता तो नहीं है, दोनों बाजुओं की तरफ फैलता तो नहीं है। अगर पेशेंट कहता है कि जी ऐसे ही होता है, तो आपको पता चल गया कि एंजाइना का पेन है। अब एंजाइना है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए आप उससे पूछेंगे पेशेंट से कि आपको जब ये दर्द सीने का दर्द शुरू हुआ था, दिल की तकलीफ शुरू हुई थी, तो आप कोई काम कर रहे थे या आप बैठे हुए थे बिल्कुल रेस्ट में थे। तो अगर तो पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ था, ये लेटा हुआ था, अचानक दर्द शुरू हुआ है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना जो है वो आपको बताएगा कि मैं फलां काम कर रहा था तो उस टाइम मेरे ये दर्द शुरू हो गया, तो ये अनस्टेबल, ये स्टेबल एंजाइना है। अब आगे आपने सिविरिटी भी आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टेबल एंजाइना में ये है कि स्टेबल एंजाइना के लिए अगर आप सिविरिटी के लिए क्वेश्चंस क्या करेंगे, ये इसके लिए स्केल है आपके पास, ये आपको बाद में भी स्क्रीन पे ये आपको लेक्चर्स बाद में भी शेयर कर देंगे। अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको कि स्टेबल एंजाइना की जब आपने सिविरिटी आइडेंटिफाई करनी है ना, तो ये स्केल के मुताबिक आपने पूछना है। ग्रेड 1 में ये होगा कि पेशेंट आपको कहेगा कि वो जो रोजमर्रा के उसके काम है, चलना फिरना सीढ़ियां चढ़ना, उसकी वजह से उसको दिल में तकलीफ नहीं होती। सिर्फ अगर कोई वो हैवी एक्सरसाइज करता है, कोई मुश्किल काम करता है, ज्यादा वजन उठाता है, उस टाइम उसका मसला होता है, तो ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में ये है कि पेशेंट आपको बताता है कि मुझे रोजमर्रा के काम करते हुए ना ज्यादा देर तक अगर मैं चलता हूँ, या कोई खाना खाने के बाद, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद मैं भागता दौड़ता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ, तो उनके दरमियान मुझे थोड़ा थोड़ा ना हार्ट का तो दिल का दर्द हो जाती है, ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में पेशेंट आपको बताएगा कि जब मैं कोई भी काम करता हूँ, अपने जो रोजमर्रा के उसके काम है मैं शुरू करता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है दिल में, तो ये उसकी मार्क्ड लिमिटेशन होगी, इसको आपने ग्रेड 3 में लिख देना है। ग्रेड 4 में पेशेंट बताएगा कि वो कोई काम कर ही नहीं पाता, कोई भी काम शुरू करने से पहले या इवन एट रेस्ट भी उसको दिल में तकलीफ होती है, तो ये ग्रेड 4 एंजाइना का। इस तरह आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उससे आपने सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चनर में ये है, हैव यू नोटिस्ड एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। आपने पेशेंट से पूछना है कि कोई भी अब जब आप काम करते हैं अब दौरान आपको सांस तो नहीं चढ़ता, आपको बहुत ज्यादा थकावट तो नहीं महसूस होती, अगर होती है तो उसमें आपके पास ऊपर डिफरेंशियल दिए हुए हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए हार्ट फेलियर है, क्रोनिक हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडीमा है, कार्डियोमायोपैथी है। अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो पल्मोनरी एडीमा का जो पेशेंट है वो ये अपराइट पोजीशन जो है ना वो प्रेफर करेगा, यानी सीधे खड़े होना। उस पेशेंट को रात को लेटते हुए जब वो सीधा लेटता है तो उसकी वजह से होगा क्या कि जी रात को लेटेगा उसको ऑर्थोपनिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा उसको बहुत ज्यादा, इस वजह से होगा कि जी वीनस रिटर्न जब बंदा सीधा लेटता है तो वीनस रिटर्न लोअर लिम्ब से उसका इंक्रीज हो जाएगा, और उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से सारा फ्लूइड एल्वोलाई में जमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से उसका जो पल्मोनरी एडीमा एक्सरबेट करेगा, उसको सांस का बहुत ज्यादा मसला होगा, ये पल्मोनरी एडीमा। फिर जब एडवांस्ड कार्डिक फेलियर उसको पेशेंट को होता है तो उसको प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल ऑर्थोपनिया का भी वो बताएगा बंदा आपको कि रात को उठ बैठता है, बहुत ज्यादा सांस का मसला होता है, वो खिड़की खोलता है, बेड के किनारे पे आके बैठ जाता है, उसको सांस का बहुत ज्यादा, ये एडवांस्ड कार्डिक डिजीज का सिम्टम है। इसमें फिर ये आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एस्थमा अटैक है या फिर ये हार्ट फेलियर की वजह से उसको सांस का मसला हो रहा है, उसको बलगम में खून आएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इस तरह आपको पता चलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं वो ये है आपका, करते हैं ये एक्सरसाइज का काम है, जो भी आप करते हैं ये आपके दिल की तकलीफ का जो आपका मसला है इसकी वजह से आपके रोजमर्रा के काम कितना उन पे असर पड़, कितना इफेक्ट हुए हैं। अब ये पेशेंट आपको जो भी आंसर देगा
करेगा, आपने उससे आइडेंटिफाई करना है कि उसकी सिविरिटी कितनी है। उसके लिए हमारे पास न्यूयॉर्क का स्केल है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्केल से ना, ये जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन स्केल दिया हुआ क्लासिफिकेशन, इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिविरिटी कितनी है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कितना इफेक्ट हुए हैं। क्लास 1 में फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे कोई मसला नहीं है, नॉर्मल मैं अपने काम ठीक ठाक करता हूँ, है हार्ट का पेशेंट, दिल की तकलीफ का मसला है, लेकिन वो आपको बताता है कि मैं अपने जो रोजमर्रा के काम है बिल्कुल ठीक करता हूँ, मुझे कोई उस दौरान मसला नहीं होता, तो ये क्लास 1 है। और इसका मतलब ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है उसको। अब क्लास 2 का पेशेंट अगर है तो वो पेशेंट से आपसे पूछेंगे कि ये कितना असर पड़ा है दिल की तकलीफ का आपके रोजमर्रा के कामों पर, तो वो आपको पेशेंट बताएगा कि जब मैं आराम से बैठा होता हूँ, एट रेस्ट, तो बिल्कुल ठीक हूँ, तब कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब अपनी ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज यानी घर का कोई काम काज करना, बाहर वॉक पे निकल जाना, ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने, ये जो अपने काम करता हूँ ना, तो मुझे सांस चढ़ने लग जाता है और दिल की तकलीफ का मसला बढ़ जाता है और मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये क्लास 2 में आएगा। क्लास 3 में फिर ये होगा, अगर पेशेंट क्लास 3 के लेवल पे है तो वो फिर आपको बताएगा कि मैं जब अपने कोई भी काम रोजमर्रा के शुरू करता हूँ ना, इवन रोजमर्रा के कोई भी काम शुरू करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा मुझे दिल में तकलीफ का मसला मेरा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा मुझे सांस लेने में भी मसला होता है, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये क्लास 3 का है। और ये पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम तो दूर की बात है, अगर ये उठकर पानी पीना चाहे या वॉशरूम में जाना चाहे, तो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझसे इतना भी नहीं हो पाता, बिलो एवरेज, यानी कि अपनी लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी से भी ना उसको ये सिम्टम्स होंगे। और क्लास 4 का जो पेशेंट है वो आपको बताएगा कि अब अगर एट रेस्ट में बिल्कुल बैठा भी हुआ हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, उस टाइम पे उसको ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, कि उस टाइम पे उसको एट रेस्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स मौजूद होंगे, उसको फटीग भी होगा, वो कहेगा मुझे सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है, थकावट महसूस होती है, बंदा हाँफता है। ये इस तरह से आपने फिर आगे उसके आपके पास अगर और क्वेश्चन इसमें देखे जाए तो आपने ये उससे पूछ लेना है कि उसको हाथ पैरों में सूजन तो नहीं है, क्वेश्चन 4 जो है। फिर पेशेंट से आपने पूछना है कि आपको बेतरतीबी तो नहीं दिल की धड़कन में महसूस होती, उसके लिए आपके पास ऊपर डिफरेंशियल है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये इन सब के लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे कि क्वेश्चंस आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके तो हिस्ट्री टेकिंग की स्किल्स इंप्रूव होंगी, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के बच्चों के डिजीजेस, उनसे रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो जूनियर्स भी हैं वो भी जब फाइनल ईयर में आएंगे उनकी स्किल्स काफी रिफाइंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसी तरह हर सेक्शन, हर सिस्टम से रिलेटेड होगा, किडनी डिजीज का सेक्शन होगा, उसके अलावा डायबिटीज का सेक्शन है कि अगर पेशेंट बताए कि मैं शुगर का मसला हूँ तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, इस पे इंशाल्लाह आपको डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया इतना आपको समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल इंशाल्लाह क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड आपको वीडियोस बना के लास्ट में शेयर कर देंगे, आपको फिर समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच Hamza. Now we have finalized it and you have just seen a glimpse of what our questionnaire looks like and how is it going to benefit you, and not just at your initial level but at your final year level as well. This might seem a bit overwhelming, लेकिन हम लोग जो है वो उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोग को अपनी presentations, we will be explaining you things on our presentation, और I hope उससे you will gather a lot of clinical skills as well, and your research skills will improve as well. स्टार्ट हम करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यू विल बी डूइंग द डाटा कलेक्शन और हम उसको प्रॉपर आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसे आगे प्रोसेस करना है। सो अब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 3 minutes. It's 9:50 and you have time till 9:53. If you have any questions, you can come up with it, and if there's no question, then you end at 53. Thank you. अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। अगर कोई फोन नंबर नहीं देता अपना, तो आप लोग जो है वो इसके लिए सिंपली उनके किसी गार्डियन का नंबर लिख लेंगे, और या किसी आप घर के मर्द का नंबर देते हैं तो आई गेस उसमें कोई इशू नहीं होगा, और नाम और ये सब चीज़ें पेशेंट बताते हैं, वी विल गिव यू द स्किल्स, वी विल ट्रेन यू विद दैट, सो यू डू नॉट हैव टू टेक टेंशन ऑन इट। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम हॉस्पिटल, मुख्तलिफ हॉस्पिटल या क्लिनिक से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, आपके गली महल्ले में कोई पेशेंट हो,
आप कहीं से बस बट पेशेंट होना चाहिए। Patient जो है वो कोई भी हो, you can collect the data from that. Even if a patient like my in my family there is a auntie जो के diabetic है, so I can take the history from her as well. So we will tell आप एक ही पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे कि डिफरेंट पेशेंट्स लेने होंगे? मतलब एक पेशेंट हमने एक क्राइटेरिया रखी है कि एक बंदा जो है वो 27 पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेगा, ये एक लिमिट है। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, बट मस्ट है कि आपने 27 बंदों का डेटा कलेक्ट करना है। और डिफरेंट डाटा कलेक्ट करना होगा या एक डिजीज से रिलेटेड, ये भी थोड़ा सा बता दें। अगर आपको एक डिजीज़ के मिलते हैं, मल्टीपल डिजीज़ के मिलते हैं, आप कर सकते हैं। आप जिस डिजीज़ का भी करना चाहें आप कर सकते हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ डिजीज़ का भी कर सकते हैं। आप सिंपली एक पेशेंट के पास गए हैं, आपने उसका सिर्फ बायोडाटा लिया जो कि अस्मा ने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में, एंड नेक्स्ट आप लोग जो है फिर आपने पूछा कि आपको कोई इसके अलावा तो कोई तकलीफ नहीं है, वो हम चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, और फिर उन्होंने बताया कि मुझे हम उसके एग्जाम्पल आप लिखा हुआ होगा आपके पास, कुछ ऑप्शन लिखेंगे लाइक कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है, ये हम आपको देंगे लिस्ट एक होगी। आप वो कहेंगे अच्छा डायबिटीज तो यू वुड आस्क आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप कहेंगे आपको कोई शुगर का मसला तो नहीं है या आपको कोई बीपी का मसला तो नहीं है। अगर वो पेशेंट कहता है यस, आप सिंपली उस पोर्शन पे स्विच कर देंगे हार्ट डिजीज वाले पोर्शन पे। अगर मैं कहता हूँ मुझे डायबिटीज भी है, यू विल स्विच टुवर्ड्स द डायबिटीज पोर्शन, और इस तरह से जो भी उसका डिजीज होगा यू विल जस्ट टेक द हिस्ट्री फॉर दैट पोर्शन। आपको पूरी एक पेशेंट की सारे सिस्टम्स की हिस्ट्री डिटेल में लेने की जरूरत नहीं होगी। सो नाउ आई एम सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बंदा पूछ रहा है कि हम जो रिसर्च टॉपिक हैं, रिसर्च टॉपिक वो इंशाल्लाह हम खुद ही करेंगे, जिस तरह का डाटा आएगा उसी के हिसाब से इंशाल्लाह रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किए जाएंगे। और हॉस्पिटल में परमिशन का मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई मसला नहीं है जो MBBS का स्टूडेंट है, क्योंकि हम सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में गए हैं तो उधर हमने सिंपली यही कहा कि हम सिम्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमारे पास साथ ज़ुहैब शाह साहब भी थे क्योंकि वो सिम्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और मैंने भी कहा कि मैं सिम्स कॉलेज का हूँ, या फिर आप किसी भी कॉलेज का कह दें तो वो आपको ईजिली डेटा कलेक्ट करने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज हमें हाउ कैन वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम, ये जो लिंक आपको फॉर्म का दिखाया था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर्ली। जब आप रजिस्टर हो जाएंगी, अगर हो चुकी हैं तो फिर वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, और आप जो है वो फिर यू वुड हैव टू कलेक्ट 27 लाइक आपके जो हमने जो फॉर्म बनाया है, यू कैन कलेक्ट दिस हिस्ट्री इन 7 मिनट्स। 7 मिनट्स के अंदर आप, और हम इसको आपको एक वीडियो बना के बता देंगे कि आपने कैसे पूछना है और क्या क्वेश्चन पूछना है, एक ताकि आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकें। What is the basic step now a first year student has to take in order to start research? Now the basic step is first you are getting registered and in our portal, ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग को हम ग्रुप्स में वो प्रोवाइड करेंगे। हमारा LMS है, उसके अंदर आपके जो हम लिंक जो हमारा लेक्चर होगा वो हम उसमें वीडियोस उसमें डाल देंगे, एंड यू कैन वॉच दिस। इससे आपकी स्किल्स आई ऑलरेडी टोल्ड कि कैसे डेवलप होंगी। How will we get permission from hospital as a being in first year, and it will be difficult that the hospital allow us. Is there any specific criteria that we have to follow in such case? Thirdly, Shimran, अगर आप ये बता सकती हैं कि आप कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी की हैं, we can give you a senior with you as well. और आप जो है वैसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता, इट्स जस्ट मतलब कि हम डर रहे होते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहता इफ यू गो एंड आस्क द थिंग्स फ्रॉम पेशेंट। और अगर आप ये मेंशन कर दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी की, तो हम आपके साथ एक सीनियर कोई भेजेंगे। डेटा कलेक्शन के लिए एक्सटेंशन नहीं मिल सकती? जैसे अभी हमें समर नोटिफिकेशंस हैं तो हमारे कॉलेज थोड़ी लेट ओपन होंगे ना, जुलाई में 28 जुलाई तक, फिर आपके पास 2 माह हैं। पूरा एक मंथ है जिसमें हम मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, अभी हम ऐड करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पर्सनल में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। अभी मीटिंग टाइम खत्म है। अल्लाह हाफिज। लेफ्ट कर जाएं, सब लेफ्ट कर जाएं।